साहेब श्री सतगुरु रविदास महाराज जियो। सतनाम सतनाम परम सत्कारयोग गुरुदेव महाराज जी की पवित्र गोद विच विराजमान प्यारे साध संगत जीओ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। राग गौड़ी ग्वाररे बाणे साहेब श्री सतगुरु रविदास महाराज जी के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साधो शास्त्रण सुन कीनो साधु का शास्त्रण सुन कीनो अन्न भगत नहीं साधे भूखे अन्न ना देनो साधु शास्त्रण सुन कीनो साधु का शास्त्रण सुन कीनो अन्न भगत नहीं साधे भूखे अन्न ना देनो टेक साहेब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सारियां संगतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दी अमृत बाणी चों पाठी साहिब जी ने शब्द लिया, साधु का शास्त्रन सुन कीनो अन पावनी भगत नहीं साधी भुखे अन ना दीजे। गुरु जी अपनी पवित्र बाणी दसदे ने कि जेड़े लोग केवल
ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਮਾਧੋ, ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁਣੀਏ ਨਾਮ ਸਭ ਸੁਣੀਏ, ਅਨ ਪਉ ਪਉ ਨਾ ਦਰਸੈ। ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਹਿਰਨ ਹੋਏ ਕੈਸੈ, ਜੋ ਪਾਰਸ ਹੈ ਨਾ ਪਰਸੈ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਜੀਵ ਤੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਾਠ ਤੂੰ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੀਰਥ ਭਰਮੇ, ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਬੇਸਹਾਰੇ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਬੇਆਸਰੇ ਦੇ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੂਬ ਪੜ੍ਹੋ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਮਤ ਕੋਈ ਕਹੋ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਹਾਰੇ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਘਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਲਾਚਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥ ਕਾਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਰਮਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੀਰਥ ਭਰਮ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ
गुरु प्यारी सत संगत जीओ, असी बेसहारे दे सहारा बनना होवेगा। मैनू एक इतिहासक कहानी याद आ गई। एक मुसलमान फकीरां दे विच एक इस्त्री फकीर भी हुई, जिदा नाम राबिया बसरी सी। ये जिहड़ी राबिया बसरी सी किसे दे काम करदी सी ते खुदा दी इबादत भी करया करदी। घर वाले उन्होंने निक्की निक्की गल तो टोकदे रहिंदे। एक दिन राबिया बसरी अपने मालकां दे घर ही किसी कारण रात आई। सुबह उठी, स्नान कीता ते खुदा दी इबादत विच बैठ गए। जिहड़ा उस घर दा मालिक सी उन्हों दे बैठन दे तरीके तो, उहदी गलबात तो समझ गया कि खुदा दी इबादत कर रही है। उन्हें अपने दूजे परिवार के मैंबरां नूं कहा कि अज तो लैके राबिया बसरी नूं कुछ नहीं कहना। ये बहुत अच्छी है, खुदा दी इबादत करने वाली रूह। जिस तरह हिंदुआं दे विच कुंभ दा मेला आउंदा है ते जिहड़े हिंदू संस्कृति नूं मन्नण वाले लोग ने वो सोचते ने कि कुंभ दे मेले ते जाना। वो हर हालत च उत्थे पहुंचण दी कोशिश करदे ने। उन्हां दा मानना हुंदा है कि कुंभ दे उपर तीर्थां ते स्नान करना बहुत वड्डा पुण्य हुंदा है। इसी तरह मुसलमानां दे विच मक्के मदीने दा जदों हज आउंदा है ते उत्थे हज करके जिहड़े लोग आउंदे ने उन्हां नूं बड़ा महान समझिया जांदा। राबिया बसरी जिस घर दे विच नौकर सी उन्हां दा प्रोग्राम बन गया कि उन्होंने मक्के मदीने हज लई जाना। ते कहन लगे कि नौकरानी नूं भी नाल ही लै चलदे आ। किन्नू? राबिया बसरी नूं। ते कुंभ दे स्नान, कुंभ दे अपने हज दे उपर चल। पैदल रास्ते हुंदे सन, पैदल चलते चलते काफी समा बीत गया ते मक्के दे अध तक पहुंचे। जदों अध तक पहुंचे तो रात उत्थे आई। रात कट के सुबह फिर अगे चाली पैना सी। जिथे ठहरे हुए सन उत्थे एक खूआ सी। नजदीक ही उथों पानी पूनी लिया उन्होंने, चले गए। राबिया बसरी ने की वेख्या, उस खूहे दे नजदीक ही एक कुत्ती है, सुई हुई है, उहदे पीछे बच्चे ने ते सारे बेचारे जीबां बाहर कड्डियां होइयां हो कर रहे ने, खूह दे दुआले फिरी जा रहे ने। बसरी समझ गई कि इन्हां नूं प्यास लगी हुई, पर पानी पिलाए किस तरह?
ਖੂਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ना ते कोई बाल्टी सी ना लज सी। विचारी इधर उधर वेख्या, कोई पेश नहीं गई कि मैं किस तरह इन्हों पानी पिलाऊं। आखिर उसने अपने नू याद आया कि मेरे पास चुन्नी है, चुन्नी किसी तरीके पानी नाल भिओं के कढ़ ली जाए तो निचोड़िया जाए, इन्हों मिल जाएगा। होर ते कोई प्रबंध नहीं, पानी डूंगा सी। बसरी ने लमकाई, वो चुन्नी पानी तक पहुंची नहीं। कहंदे उन्हें फिर किसी तरीके अपने वाल कट्टे, उन्हां दी डोरी जी बनाई वालां दी, होर कुछ मिल नहीं सी रहा ते उस दे नाल अपनी चुन्नी नू बद्धा, चुन्नी नू बन के सरोवर च सुट दिती। चुन्नी गिल्ली हो गई, उन्हें बाहर कड्डी, निचोड़िया, पानी वो पीन लग पे। हुण वो इसी तरह करी जा रही। उधरों उहदा जिहड़ा ग्रुप सी वो अगे जान लई तैयार हो गया। अजकल तो टैलीफोन मोबाइल नहीं सन कि उन्होंने मोबाइल कर देंदे कि बसरी तू कित्थे है। उन्हें इधर उधर देखिया, बसरी लभी नहीं किते। कहंदे सैंत दूजे ग्रुप नाल चली गई हुई। उहदा ग्रुप चल पिया, पर बसरी उत्थे पानी ही पिलाउंदी रही। शाम पै गई सैंत, उहदा ग्रुप चला गया। आखिर वो मक्के पहुंच गए। हज कीता सबना लोकां ने ते उथों लॉन्समेंट हुई कि जो राबिया बसरी है उहदा हज पूर्ण होया। वो सोचन लगे कि वो तो मिली नहीं सी, इहदा मतलब साडे तो पहला पहुंच गई। करदे उन्हें देखा कि राबिया जेड़ी है, बसरी जेड़ी है, उथे घूमदी हुई मिल गई ते कहन लगे तू पहला आ गई सी। कहंदी हाँ मैं पहला आ गई सी, पर असली राबिया बसरी उथे पहुंची नहीं सी। मिले, वापस आए तो सारे लोग राबिया बसरी नू बधाई देन लगे कि तेरा हज सारे हाजियां चो कबूल होया। कहंदी मैं तो उथे पहुंची ही नहीं सी। हैं? हाँ मैं नहीं पहुंची, मैं ते देखिया रस्ते च एक खूहे ते कुछ कुत्ते दे बच्चे सन, बेचारे प्यास नाल बड़े व्याकुल सन। मैं उन्हां नू पानी कढ़ के पिलाया तो आकाशबाणी हुई कि राबिया केवल ते केवल पत्थर दे दर्शन करन दे नाल हज नहीं हुंदा, तेरा असली हज हो गया क्योंकि तू जींदे जी जीवां दी प्यास नू बजाया। तू सतगुर जी कहंदे ने है इंसान जेकर तू शास्त्रां दा बड़ा पठन पाठन कीता पर किसे बेसहारे दा सहारा नहीं बनिया, तेरा ये सारा कुछ बेअर्थ है। सो इस करके गुरु जी दी सानू सिक्ख्या कि असी बेसहारे दे सहारा बनना।
पहला असी अपने परिवार वल वेखना, अपनियां जिम्मेवारियां नूं निभाउणा। अगर उन्हां दे विचों थोड़ा टाइम मिलदा है तो बेसहारे दे सहारा जरूर बन। जेड़ी बेसहारे दी सेवा चाहिदी है वो जरूर उदी करना। सेवा सिमरन तो भी महान है। पातशाह जी फिर अपनी बाणी अगे फरमाउंदे हैं, कामना विशर्यो डेअंबना त्याग्यो। पर निंदा मुक्त नहं छाड़, निफल पे सब सेवा। पाड़ कर मुस्परायो, उदर परयो अपराधे। होवे अपराधे कैसो ना सिमर्यो। अहो अविद्या साधे, कामना विचर्यो डेअंबना त्याग्यो। लोभ ना विचार्यो देवा। पर निंदा मुक्त नहं छाड़, निफल पे सब सेवा। बाट पाड़ कर मुस्परायो, उदर परयो अपराधे। होवे अपराधे कैसो ना सिमर्यो। अहो अविद्या साधे, सतगुरु जी कहते ने कि ऐ इंसान तो धर्म ग्रंथां दा अध्ययन ते कर लिया, पर कामना विसरी। पर तू कामना नहीं त्यागी, बाहरी अडंबरां नूं नहीं छड्डिया, लोभ दा तू त्याग नहीं कीता,
ऐ इंसान पराई निंदिया तू मुख तो नहीं त्यागी। इसलिए ये जो भी तू कर्म कांड कीता, जो भी पठन पाठन कीता, जो भी सेवा कीती, सारी दी सारी निष्फल चलेगी। क्योंकि गुरु जी ने कहा सी कि जेकर तू बाहरी सेवावां तां कीतियां, बाहरी पूजा पाठ ते कीते, पर तेरे अंदरों विकार खत्म नहीं हुए, कामनावां नहीं त्यागियां, लोभ नहीं त्यागया, तो ये जिन्नियां भी तू सेवावां कर रहा है, जे निंदिया दा त्याग नहीं करदा तो सारा कुछ बेअर्थ चला जांदा। गुरु जी एक होर शब्द दे विच इसे गल नूं बहुत सुंदर करके दसदे ने, जे ओ कूप जे ओ 68 तीर्थ नावे, जे ओ द्वादश शिला पजावे, जे ओ कूप तटा दीवावे, करे निंदा सब विरथा जावे। साध का निंदक कैसी तरे, सर पर जानो नरक ही परै। रहाओ जेऊ ग्रहण करे कुल खेत, अर्पे नार सिंगार समेत, सगली सिमरती सरवनी सुने, करे निंदा कवने नहीं गुनी। गुरु जी ने क्या है कि यह इंसान मान लिया, कोई इंसान ठाठा तीर्थां दा इस्नान कर लेंदा, हालांकि अज तो 600 साल पहला भारत के ठाठा तीर्थां ते सारियां इस्नान करना सारियां दे वस दी गल नहीं हुंदी। पहली ते गल ठाठ तीर्थ घुम्मे नहीं सी जांदे, पैदल रास्ता हुंदा सी, बड़ा समा लगदा सी। गुरु जी कहंदे ने मन लिया किसी ने ठाठा तीर्थां ते इस्नान कर लिया, और उन्होंने 12 शिवलिंगां दियां जो शिला ने उन्हां दी भी पूजा कर ली। 12 शिवलिंग दियां शिला ने वख वख जगह ते पईयां होईयां ने, कोई किसी स्टेट च है, कोई किसी स्टेट च है। मान लिया कि हर स्टेट दे विच ओ शिवलिंग दी पूजा कर ली किसी, बड़ी किरपा हुंदी है। फिर जे ओ कूप तटा दीवावे, जिन्हां इलाकियां दे विच पानी दी किल्लत है, पानी दे प्रबंध ना होण, मेहनत करके उत्थे कोई खूहे लवा देवे, पर जेकर वो निंदिया करदा ते सारा कुछ बेअर्थ चला जाता। क्योंकि साध का निंदक कैसी तरह, सर पर जानो नरक ही परे। महापुरुषां दी निंदिया करना कोई अच्छी गल नहीं। रहाओ जेओ ग्रहण करे कुल खेत, कहंदे ने ग्रहण लगा होवे ते कुरुक्षेत्र दी धरती दे उपर जो तलाब बनया होया, सरोवर बनया होया, उथे कोई इस्नान करे ते इस्नान करन तो बाद अर्पे नार सिंगार समेत। सतगुर जी अपनी बाणी दे विच कहंदे ने उथे एक बहुत वड्डा दान मन्निया जांदा।
ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ? ਅਰਪੇ ਨਾਰ, ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਪਵਾ ਲੈਣ, ਪਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੁਖ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਨ ਕਰ, ਸਿੰਗਾਰ ਸਮੇਤ 16 ਸਿੰਗਾਰ ਲਗਾ ਕਰ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਗਲੀ ਸਿਮਰਤੀ ਸਰਵਨੀ ਸੁਨੇ, ਕਰੇ ਨਿੰਦੇ ਕਵਨੇ ਨਹੀਂ ਗੁਨੇ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਵਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪਰਾਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਖਜਤ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰੀ ਅਡੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਔਰ ਉਲਟੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਨ ਜੂ ਦੀਆ ਸੋ ਰਿਜ ਕੇ ਅੰਬਾਵੇ, ਸਭ ਘਟ ਬੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ। ਜਿਨ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੇਖਣਾ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਸੋਚੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਪਰਾਲਬ, ਪਾਸੇ ਬਣਾ ਸਰੀਰ। ਤੁਲਸੀ ਬਾਤ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੀਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਪਰਾਲਬਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਦਾ ਲਈ ਭੋਜਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਅਵਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜੀਵ ਅਗਿਆਨਤਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ तो बहुत सारे दुखों तो बाहर निकल जाएगा। अज्ञानता ही ये दुख दा कारण है। जेड़े लोग ज्ञानवान बन गए, बड़ियां बड़ियां वड्डियां भी मुसीबतां उन्हां नूं डला नहीं सकदी, क्योंकि उन्हां नूं समझ आ गई कि जो कुछ है मालिक दा
ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ खेती बीजदा है ते ओ जी करे जदों मर्जी वढ लैण, ते बंदा के उन्हें क्यों वढ लई पहला ते ओ उहदे मालक दी मर्जी। ये ज्ञान हो जाता है जीव नूं कि मालिक दी मर्जी है जो भी हो रहा, ते उहदे च मैं दखल अंदाजी क्यों दा, ते ओ फिर दुखी नहीं हुंदा। इस करके गुरु पातशाह जी कहंदे ने कि असीं ज्ञानवान बनना, सोच वाले बनना, एवें असीं लाई लग जे नहीं रहना। पातशाह जी फिर अपनी बाणी च अगे समझाउंदे हन। हर अर्पण कर भोजन कीनो, कथा कीरत नहीं जाने, राम भगत बिन मुकत न पावै, अमर जीव गराबै प्राणी, चरण कवल अनुराग न उपजयो, पूत दया नहीं पाले, रवदास पल साध संगत मिल, पूरन ब्रह्म सदा पाले, हर अर्पण कर भोजन कीनो, कथा कीरत नहीं जाने, राम भगत बिन मुकत न पावै, अमर जीव गराबै प्राणी, चरण कवल अनुराग न उपजयो, पूत दया नहीं पाले, रवदास पल साध संगत मिल, पूरन ब्रह्म सदा परत पाले, सतगुरु जी
ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ कि ऐ जीव तू प्रभु नूं अपना जीवन अर्पण नहीं कीता। उंज ते असीं कहंदे रहे कि मैं तेरा हाँ मैं तेरा हाँ, पर दिलों असीं अपने आप नूं उहदे अर्पण नहीं कीता। अगर इंसान उहदे अर्पण अपने आप नूं कर दिंदा तो ये मालिक नूं जरूर पा लैंदा। जिस तरह गुरु जी ने कहा सी, तन मन अर्पियो पूज चढ़ावो, गुर प्रसाद नरिंजन पावो। जिन्हां ने अपना तन मन गुरु नूं अर्पण कीता, ना तां विकारां विच जाणगे ते ना ही उन्हां च अहम होवेगा। तन देता, तन दियां चीज़ां भी मालिक दियां हो गईयां, इहदी मैं खत्म हो गई। मन गुरु नूं देता ते मन फिर विकारां च नहीं जाएगा। कितनी देर तक मन विकारां च गया, जितनी देर तक मन साडा सी। मन गुरु दा हो गया तो ये अब गुनाह च नहीं जाएगा। इस करके असी मन गुरु नूं देना है। ते गुरु प्यारी साध संगत जीओ, गुरु नूं तन मन दे करके गुरु तो जो शब्द प्राप्त होया, फिर ओदी असी कमाई करनी है। ते जदों असी ओदी कमाई करांगे तो साडा मिलाप मालिक दे नाल हो जाएगा। पर मनुख तू तां ना हरि नूं अपना आप दिता, ना कीर्तन सुनी, ना कथा, ना किते सत्संग। ऐसे ही तू दुनिया दे विच भटकदा रहा। राम भगत बिन मुक्त ना पावे, अमर जीव गर्भे परानी है जीव। राम भगती तो बिना, मालिक दे नाम तो बिना तो मुक्ति नहीं पा सकदा। मुक्ति दा पाव बंधना तो आजाद नहीं हो सकदा। जितनी देर तक तू मालिक दी भगती नहीं करदा, सिमरन नाल असीं नहीं जुड़दे। जेड़े सिमरन नाल जुड़ जांदे ने ओही जेड़े जीव है वो मुक्ति नूं प्राप्त करदे ने। कहे रविदास, जो जपे नाम तिस जात ना जन्मना जोनी काम। जेड़ा नाम जपेगा, जेड़ा भगती करेगा, जेड़ा ध्यान साधना ते बैठेगा, ओही मुक्ति पदार्थ नूं पावेगा, दूजा नहीं। बाहरी कर्म कांड करन दे नाल नहीं, बाहरी तीर्थां ते नहाउण दे नाल असी बंधना तो रहत नहीं हो सकदे। तो गुरु जी शब्द दियां अगलियां पंक्तियां च आखर वालियां च कहंदे ने कि जीव दे हिरदे विच प्रभु दे चरण कमलां दा विराग उत्पन्न नहीं होया अते दया धारण नहीं कीती। सतगुरु रविदास जी महाराज बख्शिश करदे ने कि जेकर ये जीव पल भर भी सच्चे मन नाल संतां दी संगत करदा है तो इस नूं पालनहार प्रभु दी प्राप्ति हुंदी है। पल भर भी उस मालिक दे प्यारियां दी संगत करदा है, दिलों हो करके उन्हां दी संगत दे विच जुड़ जाए, वो इनू मालिक दे नाल मिलन दा रास्ता दस देणगे, ढंग दस देणगे ते जीव उस तरीके अनुसार मालिक नाल मिल लेवेगा और इहदा जीवन सफला हो जाएगा। सो गुरु प्यारी सत्संग जीओ, चाहे पल भर ही सत्संग चा आओ, लेकिन मन करके आना। जो इत्थे क्या जांदा है, जो सतगुरु रविदास जी दी बाणी कहंदी है, उन्नू अपने हिरदे च अपनाओ ते असी वाकिया ही मुक्त हो जावांगे। जेकर उन्हां दी बाणी नू अपने हिरदे विच असी नहीं ध्याउंदे, असी उन्हां दी बाणी नू अपने जीवन च नहीं अपनांदे, जो कहंदे ने उस तरह नहीं करदे, तो असी कदे भी मालिक नाल नहीं मिल पावांगे। सो आओ गुरु प्यारी साध संगत जीओ,
जो गुरु लोकां ने सानू प्रभु नाल मिलण दा तरीका समझाया, उस तरीके अनुसार मालिक नू मिलना, बाहरी अडंबरा नाल नहीं। क्योंकि सतगुर कबीर जी ने कहा सी, लोक पतीने कसू ना होवे, ना ही राम आना। लोकां नू तां मिठियां मिठियां गल्लां करके असी पतिया लवांगे, लेकिन प्रभु बच्चा नहीं जी, वो साडे अंदर दियां गल्लां जानदा, साडे हिरदे च किन्नी उहदे प्रति सरदा है, किन्ना प्यार है, वो प्रभु जानदा। इस करके सच्ची सरदा प्यार नाल ही उहदी भगती करनी है, फिर ही ये भगती प्रवान होनी है। सो गुरु प्यारी सत संगत जीओ, आओ असी सारियां ही संगतां जो सतगुरां ने इस शब्द दे विच कहा कि धर्म ग्रंथां दा अध्ययन करो, दूसरे जिहड़े कर्म ने करो, पर उहदे नाल नाल जो गुरु जी ने सच दा रास्ता दस्या है ना, उस रास्ते ते चलना। जितनी देर तक असी उस रास्ते ते नहीं चलते, सिमरन दे नाल नहीं जुड़ते, अपने अंदर असी ध्यान साधना नाल नहीं जुड़ते, तो उतनी देर तक सानू कोई भी मनुखी चोला लैन दा फायदा नहीं है। ये तां ही सफल है जेकर असी इहदे विच आ करके मालिक दी बंदगी कर लवांगे, नाम जप लवांगे। सो आओ गुरु चरनां नाल जुड़ के असी अपने जीवन नूं सफला बना लीए। देखना किते इंसानी चोले नूं एवें ने अगवा देना। यही गुरु जी दा सानू उपदेश सारियां संगतां नूं दास वल्लों। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। गुरु प्यारे सत्संगियो, करो रसना नूं पवित्र, कोई भी रसना वांझी न रह जावे। पढ़ो गुरु जी दी आरती। नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा। नाम तेरा केसरो ले छिटकारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अंबला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अंबला, नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझे को चारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा देवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा देवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे के जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। पयो जे आरो पवन सगलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला,
तेरो तागा, नाम फूल माला पारे 18 सगल जोठारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या अर्प्यो, तेरो किया तुझे क्या अर्प्यो। नाम तेरा तू ही चवर डोला रे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 8 68 चारे खानी। 10 8 68 चारे खानी। सगल संसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कहे रविदास नाम तेरो आरती। कहे रविदास नाम तेरो आरती। सत नाम है हारे भोग तोहारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। अरदास। रविदास नाम का जगत में चंडा गड़ाय पार। पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा। उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल। प्राप्ति उनको है सही सतगुर जिन पर जाल। श्वास जाए परवान करो पुण्य पुण्य लायो वाक। भगत जान बैराग की तरो अपना हाथ। बेनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास। कृपा कीजे उदास ते करो बुद्ध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार। जो सरदा कर सेवद सतगुरु पार उतार नहार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तार निहार। चिता चिमारी सी वाल्मीक जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार जुगो जुग तारा। भगत कबीर जैन बहादुर सैन की शंभु ऋषि बलवीर।
रैंका बैंका पेलने भगत बिठार निहास लो लंगर चलते करो काम को रास जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान गुर रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण गुर रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण श्लोक हर सो हीरा साढ़ के करे आन की आस ते नर दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास हर सो हीरा साढ़ के करे आन की आस ते नर दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न सोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न सोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न जो बोले सो नर पै महाराज की जय स्वामी जगत गिर महाराज की जय स्वामी गुरुदेव गिर महाराज की जय सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव जय श्री गुरु रविदास।